मीनाक्षी सोबत बोलणं होईल का? नाईन वन मला तिचा नंबर आहे 9168. हां ठीक आहे ठीक आहे चालेल. हो हो चालेल. हॅलो हां बोला. मी मग कॉलेज ठीक आहे मी घेतला. हो हो हो. हॅलो हां तिथं बोलूया. हॅलो नमस्कार बोलतो. मला म्हटलं ते 10 वाजता माझं सुरू आहे तुला आणि तुझ्या सगळ्या क्लास हो सर एक मिनिट ठीक आहे आता 10 वाजता करा ते तुमच्या ग्रुपवर दिलेलेच आहे पासबुक हो बंद केली आहे कारण मी जॉईनच नाही होत का बरं नाही येत ते दिलं तर ओके आहे जो पण मग कसं पुन्हा करणं मला पूर्ण असेल पाहिजे सरांना जॉईनला ते कोणाला काही सर्वांनी जॉईन मला ठीक आहे ना चालेल चला मग
अभी लाइव वीडियो चल रही है इधर का। पूर्वा तिचे हेडफोन दे बरं. अप्पे ये वो इथं कोणाकोणाची आवाज येते इथं. हो दाखवतो कसा इथं पाहू की बाबा ओ बाबा थांब ना तो. अरे चारू दे ना उठून दे ना. थांब थांब इथं पाहू दे. एकच जण आलं. माइक ऑफ करू माइक ऑफ कर. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Am I audible? sir, audible. Sir. Nice, nice. Audible, sir. So is it okay now? Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Students. Yes, sir. Hello. Hello. Sir, एक second hold. Okay. निशी कसं नसते ना ऐकत. Hello, sir. Am I audible? Yes. You are audible to me. Am I audible to you? Yes, sir. So shall I start it right now? I'm just giving your information to my students. Okay. Students, hello. Hello, sir. हाँ सर, सभी का आवाज आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है आवाज. So before starting our today's webinar, I request all the students to just mute their mic. Okay, sir. Thank you. I'm just giving the introduction of today's resource person, and I welcome all the students and Dr. K.S. Kadu sir in the webinar organized by our college on the topic advertisement essential for branding of products and services. Dr. Kadu is right now he's a professor at Greenhaven Institute of Management and Research, Nagpur. He has presented a number of research papers in national and international conferences at Sri Lanka and Shanghai also. He is ex-Senate member of Nagpur University, and he is co-opted member of Municipal Council Katol. He and his qualification is PhD, MBA, and MA. I would like to welcome my guide, Dr. K.S. Kadu sir, and request him to start our today's webinar. Kadu sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You can start now, sir. How many total participants are there now? There are 100 participants now. Okay, 100 participants. So I will do one thing. 45 minutes I shall speak. Okay, sir. And 15 minutes shall be given to question and answer session. Yes, sir. Now I request Tekade sir to please manage the time. Okay. After 55 minutes or 40 minutes, you stop me. Okay, sir. Okay. Shall do it 40 plus 20. That would be better. 40 plus 20. Okay. Sir. Good morning, dear students. Good morning, all faculties of the college. Good morning, sir. Good morning, sir. Very nice. Okay. Now you please mute yourself. Everyone, please mute yourself. Okay. Today's topic is very interesting. Advertisement, essential for branding products and services. You see, I have to
tell you about the meaning of the each and every word of the topic. See, in life, simple thing matters most. छोटी चीजें जो रहती ना, उसका ज्यादा महत्व रहता है. हम जनरली छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं. We generally don't pay heed to small things, but small things, they are always beautiful, and we have to know what exactly it is. So advertisement is what exactly? You see, you must have seen various notices on the notice board of your institutions, isn't it? That notice displayed on the notice board of the institution is the advertisement, isn't it? Now, why it is the advertisement? Because there is some announcement for you. That notice is an announcement for you. And the medium is, it is something like a print medium. Somebody has typed some letters. Please unmute yourself. Unmute yourself. Please unmute yourself. Okay. So the notice displayed on the notice board of your college is an advertisement. And if some of you are trying for getting employment somewhere, you must be going through newspapers, newspaper advertisements. That newspaper advertisements, in Marathi we call it as jahirati. It is also an advertisement. So it is for a job. So advertisement, the word is having a very vast meaning and a deep and a vast scope. Because everywhere, when you walk on the road, even though if you go for evening walking or shopping everywhere, the boards are displayed everywhere. Text boards, then boards printed on the board, then the publicity of the shop, like that. So the whole world is full of advertisement. Without advertisement, no marketing is possible nowadays. This is because of the prominent reason. There is a huge competition. In every field, there is a huge competition. If you want to get admission for MBA course or any type of course, many colleges are there. You have got very wide option. Of course, I must congratulate to Dr. Atul Tekade sir, because he is trying to have the potential in you and trying to grooming you in all the respect. So advertisement is exactly what? It is a notice or announcement in a public media or medium prompting a product, service or event or publicizing a job vacancy. The basic purpose is that every company, every producer, every service provider wants to have more sales, and if there is more sales, there is more profit. More is the profit, more is the reward, more is the status, more is the standard. And I expect from every one of you to become an entrepreneur in life. You are listening to this particular audio from my side. You are gaining something from my side, but I want you to grasp it from prospective entrepreneur point of view. Don't sit on your media or whatever the medium you are using for listening me as a student. You sit there as a prospective entrepreneur. India needs entrepreneurs. And you see, if you have to start entrepreneurship, you have to start your career from salesmanship. Without salesmanship, you cannot become entrepreneur. Salesmanship is the first step for entrepreneurship, and I hope you will do that. मैं हरदम मेरे स्टूडेंट को बोलते रहता हूं कि बड़े जहाज पे नौकर बनने से छोटी बोट के मालिक बनो. Don't be a servant on a big ship, rather be the proud owner of a small boat. Because if you are a proud owner, you can take your own decision and implement accordingly. So this is the definition of advertisement. I will give another definition of advertisement. See, there is no one fixed definition of advertisement, because you can take the concept according to you. And advertisement is the promotion of a product. Why advertisement? Why advertisement? I am talking you about or telling you about each and every word. That is advertisement, then branding,
then product and service. Advertisement is for the promotion of a product or a brand or a service in order to attract more and more customers for more and more sales. Basic thing is attraction. Sales जो है prospective जो buyers है उसका attract आपको attract करना है. If you fail to attract the prospective customers, you will lose your business. You will not be in profit. You may be in loss, and one day you have to close down the shutter. So advertisement is very important to survive and grow in this cutthroat competition. And cutthroat competition is there in each and every field because your business is not a monopoly business. So I again repeat, advertisement is the promotion of the product in order to attract the customers, prospective customers for more sales and ultimately for more profit. So see, what is the intention of the entrepreneur? To get more profit. To get more profit is the intention of every entrepreneur, isn't it? For if the entrepreneur is getting profit, he need rewards, isn't it? So entrepreneurs are having a very good status in the society, and I respect each and every entrepreneur because they are the job givers. And India, we need entrepreneurs because unemployment is there, and so as to solve the problem of unemployment, we need to give employment, and it is possible by way of practicing entrepreneurship. Okay. But remember, as I told you, advertisement is a very vast, deep, and very vast scope it has. It comes in many shapes, many sizes, and many forms. There is no fixed way that advertisement comes in these forms, isn't it? It comes in many sizes, many shapes, many forms, isn't it? It is as per the requirement. It is as per the requirement. Advertisement is the action of calling public attention. Action of calling public attention. लोगों का attention आपकी तरफ आने को ना, isn't it? हम लोग जरा बंधन के क्यों रहते हैं? हम जरा अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहीं? अपना अगर हेयर अगर आपके ग्रे हो गए तो उसको जरा ब्लैक पॉलिश वगैरह करते हैं, वेल सेविंग वगैरह करते हैं. Why? It is one sort of advertisement, isn't it? आपको चाहिए कि आपने किसी ने आपको नोटिस करना चाहिए, किसी ने मुझे नोटिस करना चाहिए. ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपने अंदर में कि somebody should look at us, somebody should notice us. अगर हमारा ये इंटेंशन नहीं रहता तो हम ना अच्छा नहाते, ना अच्छा लगाते, ना सेंट लगाते, ना अच्छा कपड़े पहनते. I am telling you this thing because advertisement is a part and parcel of our life, but it has different forms. It has different forms. So advertisement is the action of calling public attention to an idea, services through paid announcement by an identified sponsors. Now you tell me, if you have to give your advertisement in, say, for example, on All India Radio, maybe Akashvani, maybe Vivid Bharati, maybe FM, there are different FM channels also there, isn't it? What you have to do? You have to give them a theme. आपको उसको theme देना पड़ेगा. So you have to record the theme. So you have to go to a sponsor. किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको जाना है कि नहीं. मान लो आपको कुछ एक आधी चीज बेचना है. मान लो आपने एक आपके घर में चपाती मेकिंग मशीन तैयार किया, होम चपाती मेकिंग मशीन आपने तैयार किया, उसकी आपने मान लो पेटेंट वगैरह ले लिया और आप उसके एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं. तो किस टाइप से आप एडवर्टाइजमेंट करोगे? आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई स्पॉन्सरर या कोई एक आधा कंसल्टेंट ढूंढोगे, वो आपको एक अच्छे से एड कॉपी बना देगा. So this is a vast and growing field, advertisement. If you are an advertisement consultant or entrepreneur in advertisement, you can prepare an advertisement copy for others. आप लोगों ने ड्राइंग की एग्जाम दी होगी, मे बी एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट. इफ यू आर गुड एट हैंड राइटिंग, इफ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, देन यू कैन गो फॉर राइटिंग एडवर्टाइजमेंट कॉपी. इफ यू आर गुड इन म्यूजिक, इफ यू आर गुड इन ड्रामा, अगर आप ड्रामा में अच्छे हैं,
आप म्यूजिक में अगर आप अच्छे हैं तो आप एक एडवर्टाइजिंग की रिकॉर्डिंग थीम बना सकते हो जो रेडियो पे बजी जाती है, जो धुन सुनाई जाती है, जिसमें अच्छे स्लोगन्स रहते हैं, जिसमें अच्छे कोटेशंस रहते हैं. So this is a very creative field. I suggest everyone to try this particular field. Okay. अभी मैं आपको I would like to have the definition of the Kotler on advertisement. There are so many definitions. Advertisement is any paid form of non-personal presentation. आप खुद होकर प्रेजेंट नहीं करते, आप एक आपका बोर्ड कहीं तो भी लटका रहेगा, उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दी रहेगी. इट इज ए पेड फॉर्म, आपको उसके लिए पैसा देना है. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, खुद आप नहीं कर रहे. एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, इज इट देयर? इट इज ए पेड कम्युनिकेशन मैसेज. In simple sentence, I can say it is a paid communication message. It is a message for informing people to buy or try something. Basically क्या है? आपको प्रोडक्ट बेचना है. You have to sell the product. If you have to sell the product, isn't it? People should know that that product is available. ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये लोगों को पता होना चाहिए. आपने कितना भी अच्छा माउस ट्रैप बनाया, इफ यू मेक ए वेरी नाइस माउस ट्रैप, चूहा पकड़ने का अगर आपने पिंजरा बनाया, लेकिन वो आपने जंगल में जाके रखा, तो लोग वहां नहीं आएंगे खरीदने को. आपको उसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा. यू हैव टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, मे बी इन डायरेक्ट प्रोडक्ट or maybe the advertisement on some particular media, maybe advertisement hoarding. And then looking at the hoarding, people or the customers will make their mind to purchase that particular mouse trap. So it is the example of mouse trap. Every product requires advertisement. No company can survive, no business can survive without advertisement, because advertisement is a motivating factor to increase the sale. Okay. Now there are different forms of advertisement. Before that, I would like to tell you one thing. See, there is a difference between publicity and advertisement. Very little difference, isn't it? Actually, there is no watertight compartment to separate advertisement from publicity. For example, you must have seen कि power theft is a crime. ये इलेक्ट्रिक की चोरी करना जो है, पावर की थेफ्ट करना एक क्राइम है. पावर थेफ्ट इज ए क्राइम. पेपर में कभी कभी आता है कि आप इलेक्ट्रिक की चोरी ना करिएगा. It is a publicity, isn't it? So publicity and advertisement में difference है. Advertisement is persuasive, but publicity is informative. अगर एखादा होर्डिंग लगाया, ये हमारा डिलक्स नाम का पेन है, ये सुप्रीम डिलक्स नाम का पेन है, आप ये पेन खरीदिएगा. So you are persuading the mind of the customers to purchase it. ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं आप उसको कि नहीं ये पेन करो. फिर then you give highlights. ये पेन की इंक अच्छी है, ये पेन ज्यादा टिकाऊ है, isn't it? ये इसको हैंड को अच्छी ग्रिप है, स्मूथ राइटिंग है, isn't it? लॉन्ग लास्टिंग है. Whatever it is, means you are changing the mind of the customers, means you are attracting the customers to come to your shop and purchase the product. So it is persuasive. मराठी में हम उसको बोलते हैं मन बदलवणे. काही काही ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये फार पोटेन्शियल आणि ताकद असते. तुमचं पूर्ण मन बदलून टाकते. म्हणजे असं वाटते आपल्याला की नाही, तो प्रोडक्ट आपण घेतलाच पाहिजे. बट पब्लिसिटी इज इन्फॉर्मेटिव्ह इन नेचर, isn't it? So this is the difference between publicity and advertisement. Advertisement is of many types. Paid search advertisement, social media advertisement, display advertisement, print advertisement, broadcast advertisement. Broadcast जैसे I have given you example of All India Radio, and some advertisements are outdoor advertisements. So I would have to go hurriedly in this because I am giving you more time for question answer session. It would be more beneficial. आप लोग तो सब यंग है, you people are young and energetic. एक अच्छा मैं आपको quotation बताता हूँ. It is based on the importance of advertising. Why advertisement is important? एक अच्छा quotation है. I don't remember the person who has given this particular thing.
business without advertisement is like winking a girl in the dark. You know what you are doing, but no one else does. Winking का मतलब होता है आंख मिचकाना, आंख मारना, winking. Business without advertisement is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing, but no one else does. यानी विदाउट एडवर्टाइजमेंट अगर बिजनेस करना मतलब आप अंधेरे में कोई लड़के को आंख मार रहे हैं, अरे उसको तो आप देख ही नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या है? तो ये कोटेशन आपको कहलाता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट लोगों को दिखना चाहिए, कोई भी फॉर्म में दिखना चाहिए। आप रेडियो से सुनकर बताओ, isn't it? पढ़कर बताओ, या कोई चित्र वहां पे टांगो, या पिक्चर के कोई इसमें पिक्चर में आप ऐड दो, या व्हाटएवर सोशल मीडिया में दो, आप अपने कंप्यूटर पे दो, या फिर व्हाट्सएप पे डालो, या कोई गूगल मेल पे डालो, व्हाटएवर इट इज, देयर आर सो मेनी मीडियम्स अवेलेबल, isn't it? There are many signs on even the trains, you find different types of advertisement, even on these star buses there is advertisement, isn't it? So this whole world is full of advertisement. So this is the quotation I have told you. Now I have some good quotations, because I have a habit to start my subject with good quotations. I will just give you 2-3 quotations. There is one quotation of Tim Bell. I am still on advertising, then I have not touched the brand. मैंने अभी brand पे touch नहीं किया, मैं advertisement पे हूँ. Telling lies does not work in advertising. You see, why most of the companies have to shut down their shutter? Why many of the companies sometimes they find themselves in trouble and they are in loss? This is one reason. They tell lies in advertisement. झूठ बताते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ऊपरी ऊपरी में माल अच्छा बता देना और अंदर में सब भकास रहना, ऐसा। टेलिंग लाइज डज नॉट वर्क इन एडवर्टाइजिंग। झूठ बोलना एडवर्टाइजिंग में ज्यादा दिन नहीं चलता। सेकंड कोटेशन, द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग द ट्रूथ। ट्रूथ इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग। हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा की अभी 4थी पीढ़ी है, तो यहाँ से वो चलते आ रहा। रेमंड का उदाहरण है, आनंद महिंद्रा का उदाहरण है, हमारे यहाँ इन्फोसिस है, हमारे यहाँ रिलायंस है। These are the Indian topmost trades and brands because their basis, their foundation is truth. So if you have to survive in the market for long term, the foundation of advertisement should be based on the truth. Another quotation, what you say in advertising is more important than how you say it. आप कैसे बताते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बताते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग है ये, कैसे बताते, इससे आप क्या बता रहे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हाईलाइट द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम डिलक्स पेन, यू हैव टू हाईलाइट इट द क्वालिटीज। आप कितने भी स्टाइल से बताओ, सुप्रीम एंड डिलक्स, आप कुछ भी उसमें म्यूजिक डालो, स्टाइल डालो, फैशन डालो, फैट डालो, जो भी कुछ आप उसमें डाल रहे हो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, द क्वालिटीज इन द प्रोडक्ट। Qualities in the product is very much important. And remember, when I talk of a product, the concept of life cycle is associated with it. The concept of life cycle is associated with the product, and it is also associated with the brand, isn't it? If it doesn't sell, it isn't creative. अगर आप कोई चीज बेच नहीं सकते, इसका मतलब आप क्रिएटिव नहीं है। So the meaning is creativity is one of the basic foundation of advertisement. It should be something new. ऐसा नहीं होता जैसे you write something on a piece on paper, purchase deluxe supreme pen and you have displayed it on the wall. आप स्कूल के वॉल पे आपने लगा दिया सुप्रीम डिलक्स पेन, nobody will work for that, nobody will go for that, कोई वहां पे नहीं जाएगा, because you have to highlight. Please mute yourself. Mute yourself. Okay.
Then one interesting quotation: making promises and keeping them is a great way to build a brand. Making promises and keeping them is a great way to build a brand. अभी sorry मैंने brand का बता दिया. Now I will come to the topic. This is about the advertisement. Now when brand term is here, I will tell you the meaning of the word brand. Friends, we are familiar with the word product and a brand. Products and services, no problem. Products and services and a brand. Brand is the very important word in your life, isn't it? Because we people are brand conscious. हम brand conscious है. कोई भी चीज हम नहीं खरीदते. Just a minute. We people are brand conscious, isn't it? Why we are brand conscious? So I come to the point. What is a product and what is a brand? Dear students, we must remember the meaning of the word. जो वर्ड का जो मीनिंग है ना, वो हमें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या लाइफ में. Then we will in succession go ahead. हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. Unless and until you know the meaning of the word. What exactly is a product? Anything you see around here and there is a product. Anything is a product, isn't it? Even my spectacle is a product. The buttons of my shirt is a product. The shirt is a product, isn't it? The ring in my finger is a product. The laptop, the cell phone, it is a product, isn't it? Everywhere I see is a Fevicol, it is a product. Pens lying down here, isn't it? My tablecloth is a product. Everything is a product, isn't it? That we can see and purchase like that. Okay. So what is a product? There is one interesting definition. You can take it down. Product is a child of a manufacturer. मैं आपको किताब की definition कभी नहीं पढ़ाऊंगा. A product is a child of a manufacturer. Product manufacturer का बच्चा है. Very simple, informal definition. Product is a child of a manufacturer. For example, say if I am a product, now what is a brand? अगर मैं product हूं, तो how will you identify myself? मैं कौन बोल रहा हूं? I am Kailash Kadu. So Kailash is my brand. So the name given to a product is a brand. Product is the child of the manufacturer, and the name given to a product is a brand. ब्रांडिंग बोलते हैं ना, ब्रांडिंग यानी एग्जैक्टली होता है थप्पा लगाना, ब्रांडिंग करना. कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाओ तो ब्रांडिंग करता है, isn't it? So brand is the name given to a product. Now one more word is associated with it. That word is trademark. Product we have seen, brand we have seen. Now what is a trademark? Trademark is the legal guardian of a brand. My surname is something like my trademark, isn't it? My surname Kadu is like a trademark for me. So I again repeat, product is a child of a manufacturer, brand is a name given to a product, and trademark is the legal guardian of a brand. So this thing you remember always, isn't it? Now what we have to do? We have to increase the image of the brand. Let your customers be brand conscious. I am coming to that particular next point, that what exactly brand is, isn't it? Now, importance of advertisement in branding, isn't it? Without advertisement, you cannot survive, isn't it? That growing is the thing of ahead. But if you have to survive in the market, if you have to maintain yourself, you have to go for advertisement. It has a central role to play in
Hello. Hello. Okay. Am I audible to you? हाँ सर. Yeah. Am I audible to you? Everything is going on smoothly? Yes, sir. Okay. Are you getting me properly? मेरी बेटा आवाज आ रही सबको? Yes, हाँ, sir. yes, Yes, sir, आ रही है. Okay. चलो. It has a central role to play in advertising a brand image. मेरा जो ब्रांड है कैलाश, उसकी इमेज बढ़नी चाहिए ना. आपने बोलना चाहिए ना एक क्लास होने के बाद, अरे कैलाश कोडू सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है. So my name is my brand and I want to increase the image. आपका भी कोई नाम होगा, कोई सरिता, कोई सावित्री होंगी, कोई किरण होंगी, कोई उषा होंगी. आपको भी लगता है जो आपका ब्रांड है उसकी इमेज बढ़नी चाहिए. Isn't it? ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है. ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा कि हम हमारा ब्रांड बढ़ाना चाहते हैं, हमारी ब्रांड की इमेज बढ़ाना चाहते हैं, हमारे ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाना चाहते हैं. Isn't it? It has a central role to play in developing a brand image. It adds unique emotional values in the brand. You see, we are emotionally attached with the brand. ब्रांड के साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्योंकि वी आर यूजिंग इट ना, हम वापरते हैं. The car I purchase is Brezza, is Maruti Brezza. Okay, Vitara Brezza. I am emotionally attached with the brand. Okay, the cell phone you have purchased, you are emotionally attached with that. So there is because of advertisement, we get attached with the brand emotionally. इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस है. सिर्फ देख के एखादा देखा आपको कि एडवर्टाइजमेंट कैसे लगी हुई है, किसकी एडवर्टाइजमेंट है, isn't it? So it is a emotional attachment. It represents stronger bonding between the brand and target customer. एक बॉन्ड बन जाता है हमारा, एक संबंध बन जाता है ब्रांड के साथ और टारगेट कस्टमर के साथ. So advertisement is very important. Even we cannot think of business without advertisement. आप सोच ही नहीं सकते आप. However, it may be small, it may be big. And remember, many of the people say that amount spent on advertisement is a waste. जो लोग अपनी कंपनी बंद हो गई या लॉस में रहे, उन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा शायद कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर का पैसा ये वेस्टेज है. नो, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है. यू हैव टू पे फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड इट विल गिव यू मोर एंड मोर गेन. बिजनेस यूज एडवर्टाइजिंग टू स्प्रेड देयर ब्रांड अमॉन्ग द मासेस. यू सी, इफ यू आर गिविंग एडवर्टाइजमेंट ऑन ऑल इंडिया रेडियो, isn't it? ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो से आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है. मे बी योर इवन कॉलेज, नाउ वी फाइंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कॉलेजेस, isn't it? Green Haven Institute of Management Studies and Research, now emerging as one of the #1 management institutions in Nagpur, isn't it? So we sometimes give our broadcasting in All India Radio. For what? We are telling you that we have got this and that facilities in Green Haven Institute. क्लासमध्ये आहे, मग बोलतो क्लासमध्ये. Now, the awareness of the product or services can be created by highlighting the unique features of the brand. Brand has got a unique feature. Myself, Kailash is a brand. I have got some unique features, isn't it? Maybe different features, isn't it? Your name may be having some different features. Some may be good in handwriting, some may be good in drawing, some may be creative, some may be in swimming, like that. This way, the product has got the unique features. Okay, so the awareness of the product or services can be created by highlighting the unique features of the brand. हमारे ब्रांड का एक कुछ तो भी यूनिक फीचर्स होता है, वो फीचर से हम आगे बढ़
students, they are from fashion designing courses. Okay. Advertisement has got its own style. You see, a life cycle is associated with the product. Product के साथ भी life cycle associated होती है. जैसे हमारा birth to death हमारी life cycle है. मान लो 70 साल की होंगी या 80 साल की होंगी. ओके, मैं तो चाहूंगा कि हम सबकी 100 साल की होनी चाहिए. आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए. ओके, सो ये 100 साल के लाइफ में आपका किस टाइप से ग्राफ रहेगा? जैसे इंट्रोडक्शन है, जन्म हो गया तो इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ है, देन मैच्योरिटी है, देन सैचुरेशन है, और देन डिक्लाइन है. और डिक्लाइन के बाद ऑब्सोलेसेंस है. ऑब्सोलेसेंस मीन डेथ एंड इंट्रोडक्शन मीन्स बर्थ. सो बर्थ टू डेथ जैसे हमारी है वैसे प्रोडक्ट की भी रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव रेडियोज. आप लोगों ने शायद रेडियो नहीं देखे होंगे, आपने ट्रांजिस्टर ही देखे होंगे. वी हैव सीन द रेडियोज जिसमें हॉल डायोड ट्रायोड रहते थे. नाउ रेडियो इज एब्सोल्यूट. रेडियो का पूरा डेथ हो गया. नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू ट्रांजिस्टर्स. अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ट्रांजिस्टर शैल बी देयर इन योर सेल फोन. नाउ इट इज देयर इन द सेल फोन. सो एवरी प्रोडक्ट हैज गॉट इज लाइफ. नाउ सिमिलरली द स्टाइल हैज गॉट इज ओन लाइफ. हेयर स्टाइल, दिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू हेयर. जैसे हम देखते हैं ना राजेश खन्ना की हेयर स्टाइल, देवानंद की हेयर स्टाइल. ओके, सो दिस स्टाइल हैज गॉट ए लाइफ साइकिल. स्टाइल को भी लाइफ साइकिल है. देन फैशन वाले तो आप लोग हो. फैशन हैज गॉट ए लाइफ साइकिल. कितने साल तक वो फैशन चलेगी, कितने साल तक वो फैशन चलेगी? फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव बेल बॉटम. हम बेल बॉटम पहनते थे. वो बेल बॉटम की फैशन मुझे नहीं लगता जमीर पिक्चर ने कोई एक एक्ट्रेस ने पहना था. जमीर पिक्चर में बहुत बेल बॉटम थी. तो ये तो हम फिल्म इंडस्ट्री का ही अनुकरण जनरली करते रहते हैं. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस. जीनत अमान, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसने वो बेल बॉटम पहनी थी. अमिताभ जी ने कई पिक्चर में बेल बॉटम पहनी. तो बेल बॉटम की जो फैशन है वो 10-12 साल के ऊपर ज्यादा नहीं टिकी. तो लाइफ साइकिल जो उसकी थी वो 12 साल की थी. Then comes the important word, fad. Fad. अभी आप देखो, there is one fad going on in hairstyle. Hairstyle का fad कैसा है? ये यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सिर्फ ऊपर में टॉप रहता है. बस टॉप में रहते, बाकी आजू बाजू में पूरा उसका क्लियर रहता है. How long this particular fad will go? It is a fad. ये fad ही है, isn't it? क्योंकि उसमें आप अच्छे दिख रहे ऐसा नहीं है. It is for to protect like that, isn't it? आपका सौंदर्य बढ़ना चाहिए, उसके लिए बाल है. लेकिन भलता ही कुछ कहीं से कर लेना. इट इज ए फैड. सो फैड ऑल्सो हैज ए लाइफ साइकिल. बट रिमेंबर, नाउअडेज द लाइफ साइकिल्स आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर. फैशन की लाइफ साइकिल शॉर्ट होती जा रही है. आप कितनी भी अच्छी मार्केट में फैशन लाओ, ज्यादा दिन तक वो टिकाऊ नहीं धरेगी. कितनी भी अच्छी स्टाइल आप मार्केट में लाओ, वो भी ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं धरेगी. फैड भी अगर आपका रहता है कुछ, isn't it? तो भी ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता. क्यों? क्या कारण है? The life cycles are getting shorter and shorter. क्यों? This is because of huge competition. Profit to your organization invites the attention of others to enter in the field. आपके पास अगर प्रॉफिट मिल रहा, आपके कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो दूसरे भी लोग उस सेम बिजनेस में एंट्री करते हैं. इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट है लोगों का कि उसमें वो एंट्री कर डालेंगे. इसलिए यू हैव टू कीप वॉच ऑन दैट, isn't it? So it is a continuous updatation process. फैशन आप कंटिन्यूअसली बदलाते जाओ, स्टाइल बदलाते जाओ, isn't it? So it should be a continuous process, isn't it? So you have to survey in the market, you have to get knowledge from the market and prospective customers, and you have to go accordingly. Okay, so this is about the life cycle of a product, life cycle of a brand, and you see, brand life cycle goes in parallel with the product life cycle. एक ब्रांड अच्छा लोगों के दिल में रहता है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ ब्रांड रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में हम ब्रांड बदलाते हैं. कुछ दिन के बाद में हम ब्रांड बदला देते. नहीं, वी डू नॉट वांट दैट. हावेल्स का पंखा है, हावेल्स का पंखा खरीदा नहीं, अभी हावेल्स का पंखा नहीं खरीद देंगे, हम दूसरा पंखा खरीदेंगे. उसके पहले हम उषा के या सिन्नी के पंखे खरीदते थे. When I was in 10th standard, तो सिन्नी के फैन चलते थे.
सिन्नी का ब्रांड फिर हम फेडअप हो गए, हमने दूसरा ब्रांड शुरू किया, isn't it? So ब्रांड लॉयल्टी ये कुछ पूरी किसी की मक्तेदारी नहीं रहती, इमोशनली अटैच रहते तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा ब्रांड अगर मार्केट में आता है, आप पुराना ब्रांड छोड़ देते और नया ब्रांड लेते हैं, सो इट इज ए ह्यूज लॉस टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। लोग अगर ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड दो देयरफॉर द कंपनीज और द कंपनी पीपल शुड सी दैट दे आर कंटिन्यूअसली updating their products and adding value in their existing product, so that the brand life cycle will get extended. सालों साल उसकी लाइफ साइकिल चलने को होना, कई सालों ब्रांड आपके मन में रहने को होना, आपके दिल में रहने को होना, ये सभी कंपनी के लोगों का प्रयास हरदम रहता है। Now friends, you see, अभी कोई एक आधा माइक वगैरह अनम्यूट करके मुझे मेरे बोलना कोई anyone, which particular brand of soap you use? बाथिंग सोप। आप में से कोई अपना माइक ओपन करो। मेडिमिक्स, पियर्स। नहीं, दो नहीं, एक बताओ ना जो आप हरदम वापरती है। यू आर ब्रांड लॉयल और यू चेंज द बाथ सोप। आई थिंक चैताली कुंभार है ना? हाँ, कोई भी एक बताओ बेटा। ये क्या है? सानी का गुर्दे है। हाँ, गुर्दे। I am talking to you only, others you remain mute. What particular bathing soap you use? संतूर। संतूर। मेडिमिक्स। नहीं, मेरे से कोई एक बात करो। गुर्दे, गुर्दे कौन है? ओइसी गुर्दे, प्लीज टॉक टू मी। थोड़ा मैं इंटरैक्टिव करना चाहता हूँ सेशन बेटा। यदि एक आदमी पढ़ते जा रहा, बाकी के सुन रहे, कोई एजुकेशन की प्रोसेस नहीं है ये। गुरुदे, यू आर देयर लिसनिंग टू मी? मेरे को सुन रही बेटा? बैठ के खाओ, बैठ के। यस सर। हाँ, सुन रही ना बेटा? आप कौन सी बाथिंग सोप वापरती है? नहाने का कौन सा साबुन वापरती है आप लोग? संतूर। संतूर, संतूर। ओके ओके ओके। तो अगर दूसरा कोई वापरने का होगा तो ये संतूर ब्रांड तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरा वापरना रहा तो कौन सा वापरेंगी? विच वन? मच्छर मार दे। ज्यादा बाकी के म्यूट ही रहो, बाकी के म्यूट ही रहो। नहीं, बात नहीं कर रही। नहीं, आप आपस में बात ना करिएगा प्लीज। खा लो। सानी का गुर्दे, if you have to shift from brand to another, संतूर से अगर आपको संतूर साबुन एक आधी बार नहीं मिली, मार्केट में आप जा रही है, कौन सी खरीदेंगे बेटा? लक्स। लक्स खरीदेंगी। तो भी बताने को बहुत समय लगा, ऐसा है। तो थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियसनेस थोड़ा सा कम रहता है। ओके, यू आर यूजिंग लक्स, बट सी वी आर जनरली ब्रांड कॉन्शियस। हम जनरली नहीं बदलाते। हाँ, आप मेहमान बनके किसी यहाँ जाते हैं, कोई होटल में जाता है, तो देयर इज नो अदर गो, isn't it? What particular paste you are using? गुरुदे, आप पेस्ट, टूथपेस्ट कौन सी वापरती है? कोलगेट। कोलगेट। अगर कोलगेट कभी नहीं मिली तो सेकंड चॉइस कौन से ब्रांड का रहेगा आपका? सर क्लोजअप। क्लोजअप का रहेगा। अच्छा, और एक मेरा सवाल है, सानी का ना? सानी का गुरुदे। यस। सानी का बेटा मुझे बता, यू आर इन फैशन डिजाइनिंग और फॉर न्यूट्रिशन कोर्स? न्यूट्रिशन कोर्स। न्यूट्रिशन कोर्स है ना? अच्छा, व्हाई यू यूज कोलगेट पेस्ट? क्यों करती है इस्तेमाल कोलगेट का? बिकॉज अभी तो दंत क्रांति वगैरह आ गया, बहुत सारा आ गया। अभी रामदेव बाबा जी का भी आ गया। क्या कारण है कि आप यू आर यूजिंग कोलगेट एज ए टूथपेस्ट? बताओ क्या कारण है? कोई एक आधा रीजन तो बताओ मुझे आप। जस्ट गिव मी वन रीजन यू आर यूजिंग कोलगेट पेस्ट। आप जो मुझे रीजन बताएगी वो उसका फीचर रहेगा। क्या आ रहा है दिखा पहले। फीचर ऑफ ए प्रोडक्ट, isn't it? और ये पूरे फीचर्स उसमें भरे हैं तो उसका बन जाता है ब्रांड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दिखता नहीं है क्या? दिखता नहीं है।
अरे म्यूट योरसेल्फ. हेलो नहीं दे रहा है. हेलो 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 म्यूट योरसेल्फ. नाउ आई विल स्पीक. मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आप फिर अनम्यूट हो जाते हो. ओके ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. यू सी देयर आर म्यूट योरसेल्फ. हेलो Tekade sir, are you listening to me? Atul sir, are you listening to me? हाँ Sir, tell them to mute themselves. उनको बोलो कि वो म्यूट रहे. कौन सा? उनको बोलो कि वो सब बाकी स्टूडेंट म्यूट रहे. हाँ ठीक है. ठीक है. ओके नाउ. हाँ सर ओके. Now you see, we people are brand conscious to some extent because you get second choice of the brand, so we are ready for the second brand also. जैसे मैंने इसको सवाल पूछा कि she uses Santur bathing soap and the toothpaste as Colgate. Okay, so Colgate is a brand, Santur is a brand. What are the good day 10 बेस्ट और टॉप सोप ब्रांड्स है इंडिया में हमारे. एज पर एक सर्वे हुआ था. एक सर्वे ने बताया कि हमारे इंडिया में एवरेजली कौन से अच्छे नहाने के साबुन के ब्रांड्स है. तो उसमें एक रेटिंग किया. वो रेटिंग मैंने थोड़ा सा गूगल से उतारा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. उसमें नंबर 1 इज डोव. डोव इज द नंबर 1 ब्रांड. वो रेटिंग के अनुसार हुआ है. देन सेकंड इज पियर्स. थर्ड इज बायोटेक. चौथा है फियामा डी विल्स. फियामा डी विल्स. फिफ्थ इज डेटॉल. सिक्स्थ इज लाइफबॉय. सेवंथ इज लक्स. एट्थ इज खादी नेचुरल. नाइन्थ इज कामा आयुर्वेदा and 10th is Himalaya Herbals. Now you see, these are the names taken by me. It is about bathing soap. These are the 10 prominent brands. But you see, their number changes. दो जो है एक नंबर पे हो सकता है 10 नंबर पे आएगा. क्यों ऐसा क्यों होगा? एक नंबर का डो हो सकता है दूसरे पे, तीसरे पे, तो कभी कभी 10 पे भी चला जा सकता है. हम कहीं कुछ कह नहीं सकते. दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. ब्रांड एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पावर की वजह से ही ब्रांड एग्जिस्ट होता है. दूसरा कोई गो नहीं है. लेकिन देखो, एडवर्टाइजमेंट प्लेज ए साइड सपोर्ट रोल. एडवर्टाइजमेंट ए साइड सपोर्ट रोल होता है. एक ने अच्छा कहा था कि एडवर्टाइजमेंट यानी स्टेपनी है. Isn't it? कोई एक अच्छा कोटेशन था, मैंने सुना था. एडवर्टाइजमेंट आपको एक सपोर्ट देता है, आपको मोटिवेट करता है एक लेवल तक. लेकिन जान अपने बंदे में ही चाहिए. जान आपके प्रोडक्ट में चाहिए. जान आपके ब्रांड में चाहिए. आज भी कोलगेट नंबर 1 है बिकॉज वी आर मोर लॉयल टू दैट बिकॉज ऑफ द फीचर्स इट possesses. So advertisement and branding, it goes hand in hand. दूध में पानी, पानी में दूध. दूध में पानी की पानी में दूध क्या बोलना चाहिए? वैसे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के कारण, एडवर्टाइजमेंट ब्रांड के कारण ये कुछ बोल नहीं पाते. बट एडवर्टाइजमेंट इज द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ए ब्रांड. नाउ any another girl is there? कोई तो भी एक जन सिर्फ मेरे से बात करो. एनीबडी प्लीज. हेलो सर. थोड़ा. हाय हाँ, क्या नाम है बेटा? भारती. सर. भारती. यू आर इन फैशन डिजाइनिंग और न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन. ओके ओके. मुझे बताइए, व्हाट पर्टिकुलर डिटर्जेंट ब्रांड यू यूज? डिटर्जेंट पाउडर आप कौन सा वापरती है भारती? टाइड. यू यूज टाइड. ओके. अगर आपको टाइड ब्रांड नहीं मिला तो आपका दूसरा प्रेफरेंस क्या रहेगा? सर्फ एक्सेल. सर्फ एक्सेल. अच्छा, और पूछता हूँ, अगर मान लो सर्फ एक्सेल भी नहीं मिला तो तीसरा प्रेफरेंस हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, जो हमें आसानी से मिल सके, जैसे विल हो गया हो. ओके ओके बेटा. ओके ओके. अभी आप म्यूट हो जाओ. अभी मैं बोलता हूँ, आप म्यूट हो जाओ. यू सी, जैसे पहला बताया, और पहला क्या बताया था आपने भारती? टाइड सर. हाँ, पहला टाइड और दूसरा सर्फ एक्सेल. सर्फ एक्सेल. हाँ, टाइड और सर्फ एक्सेल. यानी भारती ने जल्दी बता दिया.
पहला टाइट तो बताया लेकिन दूसरा जल्दी बता दिया। यानी भारतीय का जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा इस टाइप का है कि जनरली डिफिकल्ट चाहिए, यानी सेकंड बताने को थोड़ा सा समय लगना चाहिए कि नहीं अपनी इसके साथ में टाइप के साथ में मान लो अपनी बहुत ज्यादा एक इमोशंस अपने जुड़े हुए हैं। जनरली महिलाओं में ऐसा होता है बिकॉज बाथिंग सोप, isn't it, डिटर्जेंट केक, देन डिटर्जेंट पाउडर, दे आर एसोसिएटेड विथ यू। ये तो सब तो आपके ही डोमेस्टिक वर्क का ये प्रोडक्ट्स है। ओके, सो देयर आर टॉप 10 रेटेड डिटर्जेंट ब्रांड्स, टॉप 10 रेटेड डिटर्जेंट ब्रांड्स। अभी भारतीय अगर बोलती है कि टाइड और दूसरा सर्फ एक्सेल, लेकिन बाकी अब मैं दूसरे किसी को पूछूंगा तो शायद उनका प्रेफरेंस अलग रहेगा। अबे दो लड़कियां अगर है तो ये दोनों प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं अलग अलग? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ द ब्रांड्स। ये ब्रांड में कुछ फीचर्स अलग है। ओके, मुझे अगर हल्दीराम का अच्छा लगेगा, किसी को आनंद 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 भंडार का मीठा मीठा अच्छा लग सकता है, किसी को वाड़ीलाल की आइसक्रीम अच्छी लगेगी, किसी को दिशा की आइसक्रीम अच्छी लग सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड रहता है, isn't it? So several factors of our human being they work in that brand select करने में। Now I give you 10 top rated detergent brands in India। डिटर्जेंट पाउडर बोलो या वॉशिंग पाउडर भी हम उसको बोलते हैं। नंबर 1 पे आता, तीसरे पे आता है व्हील, चौथे पे रियल, छठवें 7वें पे आता है रीन, 8वें पे आता है फेना, हेनको, और 10वें बिकमिंग आया। ये कभी का एक रेटिंग उन्होंने दिया हुआ, टाइड इज नंबर 2, इट में बिकम नंबर 1, isn't it? टाइड अगर एक बार का सर्फ ए ब्रांड इतना हो गया था कि हम सर्फ लाने बेचते हैं। अब डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोलते दुकान में, अब दुकान में क्या बोलते हैं? इट इज ए ब्रांड एंड द प्रोडक्ट इज वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर, लेकिन हम दुकान में बोलते सर्फ दो। बोलते ना कोई अगर मशीन जा रही, अब जैसे भी तो उसका नाम है, तो सम ब्रांड्स दे आर जैसे डालडा दो बोलते डालडा, isn't it? So डालडा इज वेरी मच फेमस इन आवर माइंड, वो पूरा फिट हो गया हमारे माइंड में कि डालडा दो या फिर सर्फ दो। फिर दुकानदार पूछता है भैया सर्फ में आपको क्या चाहिए, बिकॉज सर्फ इटसेल्फ इज ए ब्रांड। सो द 10th ब्रांड कैन एक्वायर द फर्स्ट पोजीशन, हो सकता है उसको उतनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, एंड देयर इज ऑलवेज ए इंटरनल कंपटीशन। कभी भी ये इंटरनल कंपटीशन बनी रहती है नंबर 1 आने की। आप में से मैं मेरे क्लास में पहला आऊंगा, मैं ये सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लूंगा, दैट पार्ट इज ऑलवेज देयर, वो कभी भी होते ही रहता है। ओके, नाउ अनदर गर्ल कोई है, थोड़ा सा अनम्यूट हो जाओ। कोई गर्ल है? सर आए। हाँ, कौन है बेटा? अर्शिया सिद्दीकी। अर्शिया सिद्दीकी, ओके। यू आर फॉर विच कोर्स? सर न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ओके ओके, डाइटेटिक न्यूट्रिशन, चलो ठीक है। कैसा है हमारी डिश? अगर हम अच्छे से अगर वॉश करेंगे खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा अच्छा बढ़ेगा ना, नहीं क्या? यस सर। थोड़ी हमारी बढ़ेगी, थोड़ा सा हमारा ये रहेगा, क्लीनलीनेस रहेगा, स्वच्छता भी रहेगी। आप बताइए मुझे सिद्दीकी, आप यस सर। कौन सा डिश सा ब्रांड वापरती है? सर विम जेल। विच ब्रांड यू यूज? सर विम जेल। सर विम। विम, अच्छा। अगर आपको विम नहीं मिलता है, मान लो कोई दूसरा प्रिफरेंस क्या रह सकता है? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, नाउ यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके सर। थैंक यू थैंक यू। देखो अच्छा है कि टेकाडे सर आपके जो स्टूडेंट है ना थोड़े से एक्टिव दिख रहे हैं मुझे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आई लाइक इट, जो इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा रहता है।
देखो जैसे सिद्दीकी ने अभी बताया, अर्शिया ने, बेटा विम इज स्टिल नंबर 1 ब्रांड इन डिश वॉशर। डिश वॉशिंग जो ब्रांड्स है उसमें से विम द नंबर 1 ब्रांड, ठीक है। दूसरा है एक्सपर्ट, जो आपने बताया, दूसरा वो एक्सपर्ट ही है। तीसरा है एक्सो, चौथा है निप NIP, पांचवा है पतंजलि, छठवा है डेटॉल किचन, सातवां प्रील, आठवां GP, नौवा है जादूगर और 10वां है स्क्रबल। 10th इज द स्क्रबल। अभी स्क्रबल अगर आप में से तो कुछ आप तो जानते होंगे, बिकॉज यू आर इन द वर्किंग इन द किचन लाइक दैट, इज इट। सो विम नंबर 1 है। विम को नंबर 1 में रहने के लिए विम को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, isn't it? ये एडवर्टाइजमेंट में ट्रूथ चाहिए, क्योंकि विम अगर बंडल है और कितना भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, आप एक बार खरीदोगे दूसरे बार नहीं खरीदोगे। वो एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट पे कोटेशन है, फुल मी वंस शेम ऑन यू, फुल मी वंस शेम ऑन यू। लेकिन इसका है एडवर्टाइजमेंट एक बार, दूसरे बार नहीं बनाना चाहिए। पहले बार अगर एडवर्टाइजमेंट आपको बुद्धू बनाता है या झूठ इंफॉर्मेशन कर देता है, तो इट इज अ शेम ऑन द पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजर। लेकिन दूसरे बार अगर भी आप बुद्धू बन जाते हो, फंस जाते हो, इट इज अ शेम ऑन योरसेल्फ। सो आई अगेन रिपीट, isn't it? So एक बार एडवर्टाइजमेंट ट्रूथ पे चलती है। सो दीज आर दी टॉप डिश वॉशिंग ब्रांड्स इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया है। नाउ वी कम टू दिस पर्टिकुलर। जैसे एक अनम्यूट हो जाओ, नेक्स्ट वन कोई, somebody प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. हाँ बेटा, रिया मली है Yes, sir. क्या? हाउ डू यू प्रोनाउंस योर सरनेम? रिया। हाँ रिया, मली। एक बताइए बेटा मुझे, आप डिटर्जेंट सोप, कपड़े धोने की जो साबुन है वो कौन सी वापरती है? कपड़ा धोने के लिए साबुन Rain. रिन वापरती है। अगर रिन नहीं मिली तो कोई प्रेफरेंस दूसरा हो सकता है? No, sir. Rain. ही. नहीं, मान लो रिन है नहीं तो कपड़े नहीं धोएंगे क्या? Will. हाँ हाँ व्हील है। ओके ओके ओके, पहला रिन है, दूसरा व्हील है। ओके, नाउ यू म्यूट योरसेल्फ रिया, थैंक यू। रिया बेटा म्यूट हो जाओ आप। ओके, नाउ why these changes is there? Different people are using different cakes. वैसे मान लो अगर रीन अच्छी है तो रीन ज्यादा इसमें चलनी चाहिए, बट पीपल आर यूजिंग अनदर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स। प्राइस है, क्वालिटी है, isn't it? देन उसमें उसकी टिकाऊपना है, ड्यूरेबिलिटी है, डिफरेंट फैक्टर्स आर अटैच विद द प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट खरीदते सिर्फ एक काम के लिए नहीं। आपको मालूम होगा, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम नाखून ब्लेड से निकालते थे, कितने बार खून लग जाता था। लेकिन उसके बाद में नेल कटर आया। हमने हमारी लाइफ में कौन सी मशीन वापरी छोटी सी, उसको बहुत बड़ा समझते थे, अरे बाप रे नेल कटर से नाखून काट सकते हैं। अभी नेल कटर का पहला पर्पज है नाखून काटने का। अभी नेल कटर में फाइलर आ गया, आप अच्छे से नाखून को काट सकते हो। उसमें तो ओपनर आ गया, बॉटल का ओपनर आ गया, isn't it? किसी में नाइफ आ गया, चक्कू आ गया, और एक इसमें तो मैंने थोड़ा सा पेचकस देखा, स्क्रू ड्राइवर भी देखा छोटा सा, और एक इसमें मैंने देखा उसमें टेस्टर है। यू कैन टेस्ट योर इलेक्ट्रिसिटी वेदर योर पावर इज देयर और नॉट। आप इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट टेस्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक ऑन है कि ऑफ है। द बेसिक क्या है उसका पर्पज? कटिंग नेल। लेकिन उसमें कितनी वैल्यू ऐड की आप देखो। सो हर कोई चाहता है, प्रोड्यूसर जो भी कोई है, मैन्युफैक्चरर, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड हो, ये कोई चाहता है। सो आई टेल यू 10 बेस्ट और टॉप डिटर्जेंट सोप्स इन इंडिया कौन कौन सी है। नंबर 1 पे चल रहा है सर्फ एक्सेल, नंबर 2 रिन, नंबर 3 टाइड, नंबर 4 घड़ी, नंबर 5 हेनको, नंबर 6 फेयरवेल, नंबर 7 बायो लॉन्ड्री सोप, नंबर 8 गोली सोडा क्लॉथ पैड सोप, 9 लॉन्ड्री सोप, 10th है फेना। नाउ यू सी
Surf Excel is at the top, Rin is at second position. So there is always a competition in first and second brand. जनरली 10वां एक के साथ में कंपटीशन नहीं करता है. 10वां कंपटीशन के लिए 90 के साथ, 9वां 8वें के साथ, ऐसा जनरल नेचुरल ट्रेंड दिखता है. But there is a cutthroat competition between Surf Excel and Rin, and they have to spend more on advertisement so as to keep the brand loyalty. उनको रहता है सर्फ एक्सेल को मैं पहला ही रहूंगा. अगर एक आधे दिन उसका सेल कम हो गया, एक आधे महीने में उसका सेल कम हो गया, तो ही स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट. वो एडवर्टाइजमेंट में अपना ज्यादा अमाउंट लगाता है. Isn't it? So you have to pay to become number one brand in the market. नंबर 1 ब्रांड तो रहता ही है, इसका मतलब आप नंबर 1 रहते हो. आप क्लास में टॉपर हो, मतलब क्लास में आप नंबर 1 हो. मार्क तो पेपर पे मिले हुए हैं. Isn't it? So this is everything about it. Now you think how to build a better brand. किस टाइप से करना है, कौन सा मीडियम वापरना है. Isn't it? कौन सा मीडियम आपको वापरने का है. So it is something like, it is, you must have seen better movies on advertisement. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे कारपोरेट नाम की फिल्म थी, बहुत सारी फिल्म आती है, राजनीति पे फिल्म रहती है, कॉर्पोरेट पे फिल्म रहती है, एजुकेशन पे फिल्म रहती है. Isn't it? You please take down, you go through best advertising and marketing movies. ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, थोड़ा आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी. क्योंकि मैं क्या 40 मिनट में आपको पढ़ाऊं, क्या सिखाऊं. Isn't it? तो आप लिख लीजिएगा. नंबर 1 है आर्ट एंड कॉपी. ये 89 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आर्ट एंड कॉपी. इसमें आपको ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकती है. नंबर 2, द ग्रेटेस्ट मूवी एवर सोल्ड. ये नाम है, द ग्रेटेस्ट मूवी एवर सोल्ड. ये भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बहुत ही बढ़िया है. थर्ड है वैग द डॉग. ये कॉमेडी ड्रामा है, वैग द डॉग. इसमें बहुत अच्छा ब्रांडिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का कंसेप्ट दिया है. देयर इज वन मोर कॉमेडी ड्रामा, थैंक यू फॉर स्मोकिंग. थोड़ा कैसा तो भी अटपटा लगता है, थैंक यू फॉर स्मोकिंग. इट इज ए कॉमेडी ड्रामा, थैंक यू फॉर स्मोकिंग. 5वां लिखो क्रेजी पीपल. क्रेजी पीपल ये भी एक कॉमेडी ड्रामा है, बहुत ही बढ़िया, आपको नॉलेज दे सकता है. क्रेजी पीपल. एंड एक बहुत ही पुराना है, वो तो 1986 का है, लेकिन बहुत ही मस्त है. नथिंग इन कॉमन. नथिंग इन कॉमन. Nothing in common. Now you see, there is always a secret of product placement through Bollywood movies. हमारे यहाँ का जो बॉलीवुड मूवी है ना, वो कभी भी इसको ब्रांड को ये करता है, प्लेस करता है ब्रांड को. ये सीक्रेट है, डायरेक्टली थोड़ी बोलते, इनडायरेक्टली. जैसे मिशन इस्तांबुल पिक्चर में माउंटेन ड्यू यूज किया, माउंटेन ड्यू दैट सॉफ्ट ड्रिंक यूज किया. एक की एंड का नाम का फिल्म है, उसमें सफोला यूज किया. छुप छुप के में टाइड का इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट किया. और वीरा दे वेडिंग में भिकाजी भुजिया जो है, उसका इनडायरेक्टली उसने प्रमोशन किया. और आपको मालूम होगा, जैसे एक बॉबी राजदूत आई थी पहले मार्केट में, बॉबी राजदूत. वो बॉबी राजदूत का किस टाइप से उन्होंने ये किया, मार्केट में लॉन्च कैसे किया. ऋषि कपूर बॉबी फिल्म में वो चलाते हैं, बॉबी राजदूत राज कपूर साहब की फिल्म है. सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट थ्रू बॉलीवुड मूवीज. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मीडियम. बाय वे ऑफ डूइंग दिस, you can attract more and more customers and you can be a brand loyal. So there is always a connection of brand collaborations through Bollywood movies. आप इस टाइप से collaborate कर सकते हैं. So you can practice entrepreneurship, practice writing advertisement copies, and if
ब्रांड कॉन्शियस, थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस आदमी ने होना चाहिए, क्योंकि अनब्रांड प्रोडक्ट से नहीं चलता। Purchase branded things because loyalty is attached with that, and try to have your career in advertisement. So thank you very much from my side. Now the session is open for question and answers. Thank you. Now questions and answers. Thank you, sir. I request students to ask their queries. Students, आपकी जो queries है वो आप start कर सकते हो. Good morning, sir. Good morning. Sir, I Chaitali Kumbhare. I have two questions. My first question is, what is misleading advertisement? हाँ, दूसरा भी पूछ लो एक साथ। दूसरा 2 क्वेश्चन है ना? Yes, sir. And sir, can you tell us some silent features of good advertisement copy? ओके ओके। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो आपका अटेंशन डाइवर्ट करता है, जो आपको मिसलीड करता है, जो एडवर्टाइजमेंट झूठ है, जो आपके फायदे की नहीं है, isn't it? जो ट्रस्ट पे बेस नहीं है, जो ट्रूथ पे बेस नहीं है, दैट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, isn't it? यानी ज्यादा बताना, एग्जैगरेशन करना, एडवर्टाइजमेंट खूब ज्यादा बताया लेकिन प्रोडक्ट लिया उसमें तो कुछ नहीं है। सुप्रीम डिलक्स पेन खरीदा लेकिन वो तो लीक हो रहा है, isn't it? This is misleading advertisement, and there are legal aspect also that अगर misleading advertisement अगर है तो आप जाके उनके ऊपर में क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली in some cases misleading advertisement also we find, but it is illegal. Second, आपने बताया कि good advertisement copy, कौन सी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की कॉपी होनी चाहिए जिसकी अटेंशन वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी अटेंशन वैल्यू है, यू आर कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ मैक्सिमम पीपल, you are caption of the masses, markets का आपको attention उस पेपर मिलता है, it is a good advertisement copy. For example से जैसे मैंने एक पिक्चर देखा था इसमें, हेलो बेटा म्यूट करो, एक पिक्चर था जिसमें अमिताभ जी ग्लैक्सो कंपनी में रहते हैं और एक बेबी का फीडिंग रहता है, बेबी मिल्क रहता है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी निकालती है, अमिताभ जी बोलते हैं कौन सी एडवर्टाइजमेंट कॉपी है, अरे घर में माता बहनें रहती है उनके सामने ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी एडवर्टाइजमेंट जा रही है, जरा सोबर निकालो। सो अटेंशन, इट शुड हैव ए अटेंशन वैल्यू, unless and until a copy has attention value, isn't it? You cannot say that copy is good. And you see, when you prepare advertisement copy, you have alternate copies with you. आप जो भी कंसल्टेंट के पास में जाएंगे या खुद तैयार करेंगे, आप 5 कॉपी में से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, फर्स्ट कॉपी people will tell about that, and unanimously you select the best copy. So attention value is the most important aspect of advertisement. Next question. होते ना पण त्याचं काय ना काय महिनाभर करून बघू. Next question please. राजेश्वरी पवार. जर 1800 रुपये जर आले ना, काय बँकेमध्ये आहे ते? अरे यार माइक को रजिका बोरकर, प्लीज माइक म्यूट करो. हेलो सर. पूछो ना. हाँ सर, you can start now. Yes, okay. Good morning, sir. I am Manisha, Good morning. Professor of Umangite Okay. College. Okay. Sir, what is the difference between marketing and advertisement? See, marketing is a very big term. Advertisement is for doing marketing. ये marketing का advertisement प्रकार है. Advertisement small है, marketing बहुत विशाल term है, isn't it? जैसे पूरी दुनिया ये marketing है, तो India यानी advertisement है. Without advertisement you cannot do marketing. Advertisement मुझे बोलने दो बेटा. मार्केटिंग करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट में एक टर्म है मार्केटिंग मिक्स.
मार्केटिंग मिक्स कैसे बनता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। मार्केटिंग मिक्स के 4 फैक्टर्स है या इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब मार्केटिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, यू आर जानवी? Yes, sir. हाँ, ओके ओके। So the advertisement and brand storytelling are the same terms or what? बेटा फिर से रिपीट करो, मुझे अच्छा आवाज नहीं आ रहा सुनने। रिपीट करो, फिर से रिपीट करो आपका क्वेश्चन। Sir, an advertisement terms. अपन मन से बोला ना, तो लोग कुछ पागल है। आवाज नहीं आ रही आपका। नहीं बेटा, आवाज ही नहीं सुननी है। Sorry, sir, due to network, I think. हाँ, बोलो बोलो। You can ask again. Sir, brand storytelling and advertisement are the same terms. क्या बोला? ब्रांड, Brand storytelling. धीरे धीरे बोलो। स्टोरी टेलिंग, हाँ बोलो। So, स्टोरी टेलिंग, storytelling and advertisement. So brand storytelling and advertisement are the same terms. see, if it has got a impact, उससे अगर आप किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो सेल करने के लिए, then it is a good term. उसका पर्पस जो है वो कस्टमर मिलाने के लिए, isn't it? You are going to attract the prospective customer, then it is the same thing. आप रास्ते में जा रहे हो, स्टोरी बता रहे हैं किसको, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, वो स्टोरी अलग है, दैट इज इनफॉर्मल, बट दिस इज ए फॉर्मल स्टोरी। इफ इट हैज गॉट द बेसिक, उसको ऑब्जेक्टिव अगर एडवर्टाइजमेंट का है, देन इट इज सेम, अदरवाइज नॉट। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. But in स्टोरी टेलिंग और एडवर्टाइजमेंट का ऐसा है, इफ यू आर टेलिंग द स्टोरी टू अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर मोर सेल, देन इट इज एडवर्टाइजमेंट। Then it is advertisement, otherwise not. उसका पर्पस क्या है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट होगा कि नहीं होगा उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॅलो टेकाडे सर, डॉक्टर टेकाडे सर। हाँ सर बोला। मला वाटतं क्वेश्चन संपले असेल तर हे करून टाका, फायनल संपवा। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरी अगेन? So shall we go for conclusion? Yes. Okay, sir. I would like to provide my sincere thanks to Dr. K.S. Kadu, sir, Professor, Green Haven Institute of Management and Research, Nagpur. And I thanks very much to Kadu, sir, for providing his precious time and guiding the students on the topic advertisements. Students has learned a lot of things from your lecture, sir. And I again provide my sincere thanks on behalf of Umang Getai College of Women's Education. So here that our session, today's session is closed. Thank you, sir. Thanks. Okay, thank you, and all the best to all students. Best of luck to all students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो अभी आपके ग्रुप पे फीडबैक लिंक Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. करना है, then you will get your certificate. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Students, are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. आपको अभी Yes, sir. एक मिनट बाद आपको आज के प्रोग्राम की फीडबैक लिंक आ जाएगी। वो फीडबैक लिंक आपको प्रोवाइड करना है। उसके तुरंत बाद आपको आपके सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। तो प्लीज प्रोवाइड दी फीडबैक, ठीक है?
चैट बॉक्स में भी ओके आपको सर। लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और सर सबके अपने अपने ग्रुप पे फीडबैक लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, और चैट बॉक्स में भी मैंने शेयर कर चुका हूँ। चैट बॉक्स में भी सबने शेयर कर दी है। आप चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। जी।